لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور احسان سے ہم رمضان المبارک کے مہینے گزار رہے ہیں اور اسی کے فضل سے ہم نے آج 18واں دن گزار دیے ہیں۔ نہ جانے ہم نے 18 دن میں کیا کیا کیے، کیا گل کھلائے، کیا نہیں روزے رکھے۔ روزے رکھنے تھے تو رکھے ہی نہیں، اور رکھے بھی تو ہیں لیکن اس کے حق ادا نہیں کیے، اور یہ اس کو دوسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کو بخشتے ہیں۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں لوگوں پر، لیکن دوسرے عشرے پہ جو ہے مغفرتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے ویسے کام کیے بھی یا نہیں کیے، یا ہم سے ہو نہیں پائے کہ جن کے ذریعے سے ہماری مغفرت ہو جائے، جن کے ذریعے سے ہماری بخشش ہو جائے۔ نہ جانے ہم نے کون کون سی کوتاہیاں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف مغفرت کے مہینے عشرے کو مطلب 10 دن دے کر آگے یوں ہی چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور 10 دن دیے کہ اگر تمہاری مغفرت نہیں ہو پائی ہے، تم کوشش کرو اگلے 10 دن میں تم وہ کام کرو کہ تمہاری مغفرت ہو کر تمہیں جہنم سے خلاصی مل جائے۔ اب آخری عشرے میں جو ہے کیسے کام کرنے چاہیے، ہمیں آخری عشرہ کیسے گزارنا ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آخری عشرے میں 2 باتیں ہیں، 2 کام کیے جاتے ہیں، ایک اعتکاف ہے اور اس میں ایک لیلۃ القدر ہے۔ اعتکاف اور لیلۃ القدر یہ دونوں چیزیں لازم ہے۔ اگر اعتکاف ہوگا تو لیلۃ القدر حاصل کرنا آسان ہوگا، اگر اعتکاف نہیں ہوگا تو لیلۃ القدر حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرہ دیا تاکہ ہم جو 20 دن ہم نے گزارے ہیں، جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، ان کا ہم سدھاریں۔ اعتکاف کہتے ہیں عکفہ سے نکلا ہے، یہ کٹ جانا، یعنی اب دنیاوی تعلقات سے ہمیں کٹ جانا ہے اور یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ کے ہم نے سامنے گڑ گڑانا ہے اکیلے تنہائی میں، کہ ہم کسی طریقے سے جو ہم نے پورے سال اللہ تعالیٰ کے سامنے دھوکہ بازی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دغا دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو بے وفائی کی ہے، اور جو ہم نے 20 رمضان تک ہم نے جو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر پائے، اس کو ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم اکیلے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو منوانا ہے۔ کسی بھی طریقے سے ہم نے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 10 دن عطا کیے ہیں۔ اب اعتکاف کرنا کیسا ہے، اس کو کرتے کیسے ہیں، طریقہ کیا ہے اس کا؟ آج کل جو ہے افطار کا وقت ہوتا ہے 50 میں، 6:50 میں ہوتا ہے۔ تو اعتکاف میں یعنی مسجد میں اعتکاف کی جو شروعات ہوتی ہے آخری 10 دن یعنی 20ویں تاریخ کے 6:50 تک مسجد کے اندر ہونا پڑے گا، یعنی اتوار کی شام کو، یہ جو آ رہا ہے اتوار، اس میں تو اس کو 50 منٹ سے پہلے مسجد کے اندر آنا پڑے گا، اور اس کو نیت کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، ویسے ہی میں بھی اعتکاف کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اس کی نیت درست ہونی پڑے گی، تبھی جا کے اس کا اعتکاف درست ہوگا، اور وہ کام کرے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اگر اس کی نیت ہی کھوٹ ہوگی اس کے اندر، اور اس کی نیت ہی ہوگی کہ بھائی لوگوں کو دکھانا ہے، تو وہ اندر بیٹھا رہے گا بس، اور کچھ نہیں کرے گا، اعتکاف میں نہ آ کر برابر ہوگا، اور فون چلاتا رہے گا اور گپے لگاتا رہے گا۔ اگر 2-3 اور بندے ہو جائیں گے تو صرف گپے اور ہانکتے رہیں گے بس، اور کچھ نہیں پتا چلے گا ان کو، اور اس سے تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک تو مسجد کے اندر، ایک آخری عشرے میں، ایک رمضان کے مہینے میں وہ اپنے وقت کو ضائع کر فون کے اندر گپے لگانے میں، یہ تو 3 گنا ہو جائے گا۔ ایک تو رمضان کے اندر یہ تو ڈبل گنا ہے،
جو गुनाह गैर रमजान में होता था वो रमजान में आकर डबल हो जाता है। इसी तरीके से अगर वही गुनाह अगर मस्जिद में किया जाए वो भी रमजान में तो ट्रिपल गुनाह हो जाएगा। तो एतकाफ को भाइयों हम ऐसा ना समझे कि कोई खेल है, एतकाफ को हम ऐसे गुजारे जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं। वो किस तरीके से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ में आकर उन्होंने लैलतुल क़द्र की तलाशी की है, यानी उनको तलाश किया कि लैलतुल क़द्र किस तरीके से हासिल हो। अब एतकाफ की फजीलत क्या है? अगर नीयत खालिस है तो अल्लाह ताला की तरफ से फजीलत यह है कि अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें दूर कर देते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खंदक की मसाफत जमीन और आसमान के जो अंदर फासला है इसकी मसाफत है। अब हम खुद अंदाजा लगाएं कि एक खंदक की अगर मसाफत यह है कि जमीन और आसमान के दरमियान जो मसाफत वो है, तो 3 खंदक की मसाफत कहां तक होगी। और यहां खंदक की मसाफत बताकर तालीम देना मकसद नहीं है कि एतकाफ करने वाले को इतनी इतनी लंबी कितने मीटर होंगे उतने दूर किया जाएगा, ये मकसद नहीं है। मकसद यह है कि उसको दूर कर दिया जाएगा जहन्नम से, और जिसको दूर कर दिया जाए जहन्नम में जा सकता है, उसको जहन्नम की बू भी नहीं आएगी। तो जहन्नम में से उसको दूर कर दिया जाएगा एतकाफ करने वाले को। और क्या फरमाया कि एतकाफ के जरिए से तुम लैलतुल क़द्र की क्या करो, तलाश करो। लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत अता फरमाई है लैलतुल क़द्र की। ये किस तरीके से मशरू हुआ? एक दफा आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बारे में कुछ बताया कि उसमें 4 जवान ने 80 साल तक उन्होंने जिहाद किया, 80 साल तक उन्होंने इबादतें की। सहाबा करम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हमारी तो पूरी कुल मिला के 80 साल नहीं होते, हम कैसे उन तक पहुंचेंगे। तो ये अभी बात चल रही थी कि सहाबा करम पूछ रहे थे कि क्या होगा हमारे साथ, हम तो 80 साल पूरी गुजार ही नहीं सकते, उसमें से भी 10-15 साल हमारे बचपन में चले जाते हैं, 80 साल होते भी नहीं हमारी उम्र, तो कैसे गुजारेंगे, उनकी तरह इबादत कैसे कर सकेंगे। फौरन जिब्रील अमीन आए, क्या फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। ये अंदाज है कि शुरू में फजीलत लैलतुल क़द्र का नाम लेकर कुरान की क्या कुरान की फजीलत यह है कि रमजान में तो उतारा ही है, लेकिन और फजीलत यह है कि उसको लैलतुल क़द्र को उतारा हमने। और क्या हुआ, आपको क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? ये कुरान का और एक प्यारा अंदाज है। पहले क्या करता है, सवाल करता है। कुरान जो है ना सवाल करके लोगों को मुतवज्जे करता है, पहले मुतवज्जे हो जाओ, तुम्हें मालूम थोड़ी ना है, तुम्हें हमें बताया, हम बताएंगे तुम्हें। क्या, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र यह है कि 1000 महीने से जो है 1000 महीनों से उसकी खैरुन बेहतर है। तो लैलतुल क़द्र की फजीलत यह है कि 1000 महीनों से बेहतर है। और लैलतुल क़द्र 1000 महीनों में जो उसमें भी तो लैलतुल क़द्र आएगी ना, जो महीने होंगे, उसकी फजीलत कहां तक होगी वो पता ही नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें ये फजीलत अता की है। फिर क्या हुआ कि इसकी तायीन भी थी कि किस तारीख को लैलतुल क़द्र है। लेकिन मसला यह हुआ कि जब आप अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को सुनाने जा रहे थे, तो उस वक्त कुछ 2 सहाबी जो है आपस में लड़ रहे थे, किसी बात पे उनका झगड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ, रुफ़िअ अन्नी तायीन, कि उनसे जो है लैलतुल क़द्र की जो है तायीन उठा दी गई। जो उनके जहन में था कि मुतायन है किसी रात में, वो खत्म हो गई। फिर क्या हुआ कि लैलतुल क़द्र को जो है आखिरी 5 दिनों में, यानी ताक रातों में क्या कर दी, उसको बांट दिया कि किसी भी रात में तुम्हें तलाश करना है। और ये अल्लाह ताला का करम है हम पर। हम सोचे शायद हमें मुसीबत में डाल दिया गया है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हम पर करम किया। क्यों? इसलिए कि अगर रात मुतयन कर दिया जाता है कि फला तारीख में लैलतुल क़द्र है, तो बसा औकात मुसलमान गफलत में पड़कर शराब भी पीता, गलत काम भी करता, तो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आता है, जिस तरीके से बनी इसराइल और इससे पहले कौम पर पकड़ आई है। हो सकता है कि हम खिंजीर और बंदर भी बन सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हमसे ये तायन उठा दी गई और कहा कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, हम 5 रातों में सिर्फ तलाश करो। और अगर आज हम देखें, अगर नाइट ड्यूटी लगा दी जाए किसी की, तो पूरी रात जागा रहता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे सिर्फ 5 रातें जागो। हम अल्लाह के लिए 5 रातें नहीं जा सकते, सिर्फ 5 रातें, 5 ही तो है, कौन से हम एक पूरे महीने के बता रहे हैं। 5 रातें जागे, और ये तो वक्त हो ही जाता है। आजकल रातें कितनी बड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 5 घंटे भी नहीं होते कि तरावी पढ़ते पढ़ते 10:30 बज जाते हैं। फिर हम कुरान की तिलावत करें, फिर नमाजें पढ़े, फिर दुआएं करें, तो रात कहां से खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और आज हम गफलत की नींद में सोए पड़े रहते हैं। एतकाफ करने वाले के लिए ये रातें जो हैं बहुत ही अहमियत रखती हैं, और दूसरे के लिए तो रखती ही है, लेकिन एतकाफ के लिए और ज्यादा रखती है, क्योंकि वो एतकाफ करने आया ही इसी मकसद से कि लैलतुल क़द्र हासिल हो जाए। तो
एहतिकाफ करने का सबसे ज्यादा जो सही मकसद हुआ वही है कि लैलतुल कदर हासिल हो। तो अल्लाह ताला हमें जो है एहतिकाफ भी करने की तौफीक अता फरमाए और लैलतुल कदर की तलाश करने की भी तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर जो अल्लाह के ताला ने, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में किए हैं वो हमें करने की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे को माफ कर दे, दिल साफ कर ले अपने आप, अपने दिल को, ये भी एक सवाब है। अपने दिल को साफ कर ले भाइयों से। और हमारे लिए तो खुशकिस्मती की बात है कि बठिंडी मरकजुल मारिफ में तो हर साल एहतिकाफ होता है। आज भी वहाँ उलमाए कराम भी जमा होते हैं और आखिर अशर में वहाँ जो एहतिकाफ होता है उलमा की सोहबत में। ये हमारे लिए बरकत की बात है और हमें फख्र करना चाहिए कि हमारे जम्मू इलाके में उलमा की मजलिस में, उलमा की सोहबत में एहतिकाफ करने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम उसको हम अपने हाथों से जाने दे रहे हैं कि जाओ, हमें जरूरत नहीं है, हमें नेकी की जरूरत ही नहीं है। वो सहाबा किराम थे जो तड़प रहे थे कि वो तो 80 साल जिहाद करते रहे, हम कैसे करेंगे? हमारे अंदर वो तड़प ही नहीं है, वो पता ही नहीं चल रहा है कि हम मुसलमान भी है क्या है। तो खुदा आखिरी 10 दिन को हम ऐसे गुजारे कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और ईद के दिन कहे कि जाओ, जो तुम मांगना चाहते हो मांगो, तुम्हें मैंने आजाद कर, तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला हमसे वो हमें कहे, वो हमें वो उस ईद की तभी खुशी होगी। वरना ईद क्या है? ईद तो उसके लिए भी ईद होती है जो रोजा नहीं रखता। हालांकि असल ईद उसके लिए जो रोजा रखता है और उसकी मगफिरत हो गई हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि आखिरी अशरे के हम खूब मेहनत करके अल्लाह ताला को राजी कर ले आखिरी अशरे में, और कदर करने की तौफीक अता फरमाए आखिरी अशरे की, और लैलुल कदर की तलाश करने की तौफीक अता फरमाए और एहतिकाफ में बैठने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।